welcome all to Startups in Bihar, a platform where we connect successful entrepreneurs and founders to the youth in Bihar to raise awareness and spread knowledge about startups and businesses across the state. Dear friends, Startup in Bihar is an initiative presented by Bihar Chhatra Sansad, which is a apolitical platform for students since 2015, which provides youth a platform to voice their opinions and views and connect them to the leadership to strengthen the democratic fabric of the nation. This is in association with Counseling Edge, which helps students to choose the right career path and excel in their own careers. So, dear friends, almost everyone can tell you where the risk is, but only an entrepreneur can see the reward and grab it. So today we have one such young and wonderful entrepreneur who is running her own business quite successfully in Bihar itself to talk to us. We are more than happy to welcome Akriti Verma ji, who is the founder of AKV Wallputti, Renaissance Industry Private Limited, to talk to us. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you for such a warm introduction. And first of all, I would like to wish you all a very happy Saraswati Puja. So I think you guys have chosen an apt day to for me also, I think I'm very privileged that I got to speak on such occasion. So first of all, warm wishes for all of that. Yeah. Thank you, ma'am. So I would like to start with the first question. Yep. Ma'am, please tell us something about your company and its journey since inception. Like, how has it been for you to start your company and all background? So actually, I registered my company back in 2015. So at that point of time, actually, I was studying in Singapore and then I was working there in Singapore. So I formed this company in 2015. It got registered. So back then I had plans to start manufacturing of goat cheese. So goat processing, like goat milk processing and goat cheese processing is a lot prevalent outside India, but in India, we still don't have that much culture. So I actually wanted to start it over here. I had some parental lands in my village. So I wanted to start it over there. But we didn't get one license. And then I had to cancel my plans and then I stick to my job. But then that entrepreneur worm was always kind of biting me, it was not going out of me. And then I decided in 2018 finally that I have to leave my job and I have to start my own business. So actually we started working in this company from 2008. In 2018 we actually started working on it. Great, ma'am. So you said before trying this out, you started out by processing goat cheese. So what actually inspired you to become an entrepreneur? When did you really figure out कि मुझे business ही करना है मेरे life में? And who were your role models? Who were your inspiration? So my chacha is actually a builder. So when I was young, I always used to look upon him he was kind of a role model. So he was very focused on what he was doing. And it kind of intrigued me, how much effort goes into business and stuff. And he built everything from scratch. He was never fear of taking risk. And he was venturing into new things and, coming from a service class background, but, achieving such milestones on your own. So that was really inspirational for me from my childhood. And when I went to Singapore for doing my MBA, the kind of people that I met in Singapore, that was also very, very encouraging. So I met people from very underdeveloped countries at Vietnam, Cambodia, and I was I was so astonished to see their business ideas. And then I was like, no, I have to become an entrepreneur. I have to start something of my own. So from there, my entrepreneurial journey kind of started.
Great, ma'am. So there are a lot of people in the state of Bihar who migrate to other states, but it's within the country itself. So there's not much of a cultural, what you say, cultural difference that is attached to it. At last, they are in the same country, but you totally migrated to a different country. So was there any like, what were the drastic differences which you saw between the cultures of India and Singapore? So a lot of things actually, right? So what happens is कि जब आप बहुत सारे जगहों के लोगों से मिलते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज पता चलते हैं. You're not, restrained to one place or certain geographical areas. आप चाइना के लोगों से मिल रहे हो, आप वियतनाम के लोगों से मिल रहे हो, आप कंबोडिया के लोगों से मिल रहे हो, आप यूएसए के लोगों से मिल रहे हो, आप यूरोपियन कंट्री के लोगों से मिल रहे हो. तो आप जितने लोगों से मिलोगे, जितनी बुद्धियां मिलेंगी साथ में, आई थिंक उतने आइडियाज लाइक विल इट विल कम अप. तो वो बहुत जरूरी हो जाता है और वो आपके बिहेवियर में, आपके सोचने के तरीके में काफी चेंज लेकर आता है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड दैट काइंड्स ऑफ मेक यू इवॉल्व एज अ पर्सन. आपके सोचने का तरीका काफी चेंज हो जाता है. So even in India, if you will see, like I done my graduation from Delhi University. India may be in DU, since DU is a central university. A lot of people from other states come and they study. So जितने लोगों से मिलोगे, जितने जगहों के लोगों से मिलोगे, आप आई थिंक उतना आपका ब्रेन इवॉल्व करेगा, उतने आपके पास आइडियाज आएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, ma'am, basically for an entrepreneur, exposure is very necessary. Exposure बहुत जरूरी है. Exactly, because at the end of the day आपको लोगों के बीच में ही जाना है, right? Like whatever you are doing it for the people. ऐसा तो कोई entrepreneur है नहीं कि बस अपने लिए चीजें बना रहा है. I mean, you have to sell it to the masses. तो आपको लोगों का सोचने का तरीका समझना है. That is very important. और वो कैसे आएगा? जब आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करोगे तभी आएगा वो. और डिफरेंट टाइप के लोगों से. That is also very important. जी. And being a woman and getting into a very traditional sector, आपका जो सेक्टर बहुत ट्रेडिशनल है, आपने क्या-क्या challenges आपने फेस किया स्टार्टिंग में? तो दो टाइप के चैलेंजेस होते हैं. एक तो हमें फैमिली के लेवल से जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू कन्विंस देम, राइट, कि मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है, मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, जॉब छोड़ना है, बिकॉज जॉब छोड़ना इज क्वाइट रिस्की एंड दैट्स हाउ आवर पेरेंट्स थिंक. तो सबसे पहले तो मतलब उनको कन्विंस करना इज अ बिग चैलेंज कि कुछ स्टार्ट करना है. वो कन्विंस हो जाते हैं दैट एट प्रोफेशनल लेवल यू स्टार्ट लाइक सीइंग चैलेंजेस, बिकॉज अगर आपके पास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता नहीं है. एंड ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. जो आप पढ़ाई करते हो और जब आप ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो बीइंग अ वुमन, एंड स्पेशली आई हैव नॉट पर्सनली मेट एनी वुमन हु इज इनटू पेंट्स एंड पिगमेंट इंडस्ट्री और हु इज इनटू सीमेंट इंडस्ट्री. तो इस टाइप की इंडस्ट्री में घुसना वाज अ चैलेंज, बिकॉज एक तो मैं जब कॉल करती थी लोगों को और इस बारे में पूछती थी कि अच्छा रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, पैकेट कैसे बनेगा, सारा जो मैं R&D कर रही थी, तो कोई मेरे को सीरियसली लेता नहीं था, क्योंकि मैं एक तो मेरी एज काफी कम थी, दूसरी बात कि आई वाज अ वुमन, सो नोबडी वाज टेकिंग मी सीरियसली बिकॉज दे हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट. नोबडी वाज देयर इन दिस फील्ड. सो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था. मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गई थी इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पे मेरे को कोई एक भी, लाइक आई हैव नॉट मेट अ सिंगल, नॉट इवन सीन अ सिंगल वुमन. सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड इट्स सैड आल्सो टू सी कि मतलब इंडिया में इतनी वुमेन पॉपुलेशन है एंड व्हाई इज नोबडी इन दिस फील्ड, लाइक India has so much of capability, but it's sad to see that. लेकिन मैम आपके पास एक जज्बा था, साथ ही में आपने एमबीए भी किया था, तो एमबीए ने आपको कैसे हेल्प किया कि आप बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके और आइडेंटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज? तो एमबीए में सबसे पहले जो बड़ी चीज मेरे को सिखाई है, दैट वाज लाइक टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स. ये एक बहुत बड़ी चीज थी दैट एमबीए हैज टॉट मी, राइट. एमबीए में हमें टास्क दिए जाते थे, लाइक बिजनेस डेवलप करना,
बिजनेस के लिए फंड रेज करना, वो सब हमें प्रैक्टिकली जाके करना होता था. तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक काइंड ऑफ हेल्प मी. Like I have met a lot of people which kind of shaped my thinking capacity. तो ये सब काफी सारी चीजें थी जो एमबीए ने मुझे सिखाया है. बहुत सारे लोगों से, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों से दूसरे दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से मिलके आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स लाइक एमबीए हैज टॉट मी. या मैम एंड इसी दरमियान क्या आपके पास कोई प्लान बी भी था, क्योंकि आपने गोट चीज प्रोसेसिंग आपने एक बार ट्राई किया था, उसके बाद यू मूव्ड आउट किया, फिर आपके पास कोई प्लान भी था इसके अलावा और कुछ? नहीं, जब मैंने फिगर आउट कर लिया कि मेरे को वॉल पुट्टी करना है, तब मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था. क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आपके पास प्लान बी होता है ना, जब आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आप कभी भी एक काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे. मतलब आप बस एक ही प्लान रखो और आप बिल्कुल ठान लो कि नहीं करना है तो यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना. बिकॉज जहां आपके पास प्लान बी हुआ, यू आर नेवर गोना वर्क ऑन प्लान ए. So try and focus like working on plan A itself and making it successful. That's very important. So I did not had any plan B. सो ओरिजिनल प्लान को ही आप हम अपना पैशन बनाएं. Exactly. That is very important. और ये लाइफ में भी मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने आपके पास ऑप्शंस होंगे ना, आपका दिमाग हमेशा इधर उधर भटकेगा. अगर आपने सोच लिया कि बस मेरे पास यही है और मेरे को यही करना है और इसी में सक्सेसफुल होना है, then only you will succeed in life. ग्रेट. सो आई होप हमारे सभी छात्र दोस्तों ने नोट किया होगा. सो मैम, इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक एसेंशियल स्किल्स है कि एक व्यक्ति के पास हो जो बिजनेस स्टार्ट और रन करने के लिए बहुत एसेंशियल है? जो सब दो चीजें बहुत जरूरी है बिजनेस स्किल्स के लिए. एक तो होता है आपकी लर्निंग एबिलिटी टू लर्न. तो आपको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा सीखने के लिए. और आपको जिंदगी में कोई कुछ भी सिखा सकता है और आपको वो इनकलकेट करना चाहिए. आपको एक लेबर भी बहुत कुछ सिखा सकता है, आपको बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीईओज भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं. बट आप अपने आप को खुला रखो कि हाँ मुझे सीखना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्राई टू बी लाइक अप टू डेट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. बिकॉज आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर आपकी कंपनी है, आप अप टू डेटेड नहीं हो, कोई और आपसे अच्छी सेम कंपनी खोल दे, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, आपको तो पता ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया, बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग अप टू डेट. तो ये चीज बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू बी ओपन फॉर लर्निंग. एंड नेवर थिंक कि कोई छोटा बंदा, चाहे आपसे वो स्टेटस में छोटा है या उम्र में छोटा है, वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता. हर कोई आपको बहुत कुछ लाइफ में सिखा के जाता है. जो भी आपसे लाइफ में मिलते हैं वो बहुत कुछ सिखाएंगे, right? So always be open to learning, not as in career also, in business also, but also in a life. Like try to practice the skill. And second thing जो business skill के लिए important है, that is sales and persuasion. तो आप सेल्स में बहुत अच्छे होने चाहिए. चाहे आप कोई सा भी बिजनेस करें, आखिर में आपको जनता के पास ही जाना है और उनको ही बेचना है. तो वो आपको आना चाहिए. यू शुड हैव अ कन्विंसिंग पावर कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हो अपनी चीज खरीदने के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दो चीज आर द मस्ट इफ यू इन द बिजनेस स्किल्स. या तो एसेंशियली कम्युनिकेशन स्किल्स और हर किसी से सीखने की एक वृत्ति इंसान में चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ. एंड सेल्स, लाइक सेल्स थोड़ा Sales. सीखना पड़ेगा. और सेल्स तभी आएगा जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आओ, मतलब ग्राउंड पे उतरोगे. तो ऐसा नहीं होता है कि कोई रातों रात सेल्स सीख जाता है, नहीं. वो जब तक आप प्रैक्टिकल करोगे तभी वो आपको आएगा. जी. और बिहार में आपका बिजनेस स्टार्ट करने का लाइक आपने वहां पे सब सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क किया होगा, आपने देखा होगा कि जमीनी हालात क्या है, एंड व्हाट वाज द बेसिक रीजन कि आपको बिहार में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको प्रेरित किया? तो सबसे पहले तो मैं बिहार में बॉर्न हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग बिहार से करी है, पटना से करी है.
और बिहार मुझे लगता है कि इज अ वेरी कल्चरली रिच स्टेट, राइट? पहले अगर हम देखें, बात करें, लाइक सो मेनी रिलीजन हैज कम आउट ऑफ बिहार। तो मतलब बिहार में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दैट इज इन बिहार। बिहार के पास हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है रेशियो। तो अब आप ये सोचो कि जब आपके पास इतने यूथ हैं, अगर आपके पास यंग पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली आपके पास उतनी एनर्जी है काम करने के लिए, काम करवाने के लिए लोगों से। दे हैव लाइक फ्रेश ब्रेन्स, लाइक देयर आइडियाज आर फ्रेश, देयर आइडियाज आर एग्जाम्पलरी। तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे हिसाब से जहां पर भी गैप है, वहां पे अपॉर्चुनिटी है। अगर अगर बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, तो आप सोचो, अगर आप फैक्ट्री डालोगे तो आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो? कौन है आपका कंपटीशन? यू हार्डली हैव एनीबॉडी कंपीटिंग विथ यू। सो यू कैन बी लाइक सो सक्सेसफुल। एंड बिहार में इतना ज्यादा पोटेंशियल मैं देखती हूँ। Like, I think people from Bihar have one of the best brains in the country. I mean, they are the ones who are excelling in, either they are like in whatever field they are, in the field of medicines, in the field of technology, civil services, anywhere. I mean, they are at the top. But why not कि आप बिहार में ही काम करो? तो हम बिहार को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं? और अभी तो मैं बोलती हूँ सबको कि इन्वेस्ट करो बिहार में। लाइक अभी आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा और आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। सो या यस, यानी मैम बिहार में अभी इन्वेस्ट करने के लिए पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि बहुत बेसिक स्टेज में है, तो कंपटीशन भी कम है। एग्जैक्टली ग्रेट एग्जैक्टली। मैम। एंड बिजनेस मेंटालिटी को प्रमोट करने के लिए बिहार में क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं अगर फैमिली लेवल पे बात करूं, तो एक तो फैमिली को ना अपने बच्चों में ये इंस्टिल करना पड़ेगा कि आप ना सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल को छोड़ के भी आप कुछ सोचो लाइफ में करने का। बिकॉज हमारे फैमिली में होता क्या है ना, कि हमें बहुत डराया जाता है, राइट? कि नहीं, तुमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर फेल कर जाओगे तो क्या होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब करो तो वहां पे भी फेल कर सकते हो, या कुछ भी करो लाइफ में, आप फेल कहीं पे भी कर सकते हो। तो आपको अपने बच्चों को ये बोलना पड़ेगा कि दैट there is a lot of potential apart from these traditional job occupations. तो पहले तो आप उस लेवल से बच्चों को स्टार्ट करो। फिर उसके बाद आई थिंक कि स्कूल्स में एंटरप्रेन्योर क्लब्स बनाने चाहिए, जहाँ पे चिल्ड्रन को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, आप अपने बिजनेस आइडियाज को रखो। उनको बिजनेस आइडियाज को फंड करना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम ये सब कर सकते हैं। क्योंकि आई थिंक कि फैमिली ही जब आपको सिखाने लगेगी ना, तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट वुड बी लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक गवर्नमेंट को लाइक बहुत सारे प्लान्स निकालने चाहिए, टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स, टू हेल्प पीपल, टू ब्रिंग पीपल एंड कम इन्वेस्ट इन योर स्टेट। So all these things need to be done. Like government को tech parks बनाने चाहिए, education parks बनाने चाहिए, बहुत सारी मतलब हेल्प करनी चाहिए, ग्रांट्स देने चाहिए। तभी तो लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज हु मतलब व्हाई वुड एनीबॉडी कम एंड इन्वेस्ट इन योर स्टेट? सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बिहार में अगर हम देखें, तो बिहार हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। बिहार में बहुत फर्टाइल लैंड्स हैं। बट अगर आप बिहार का कोल्ड सप्लाई चेन देखो, दैट इज पथेटिक। तो ये इन सब चीजों पे गवर्नमेंट हैज टू लाइक वर्क। तो ये दोनों लेवल पे काम होना चाहिए, फैमिली लेवल पे भी एंड आल्सो एट द गवर्नमेंट लेवल। सो बोथ थिंग्स आर एसेंशियल। सो मैम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस होना चाहिए हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक एंड लेवल पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो कौन इसमें पढ़ना चाहेगा? आप उसको इजी बनाओ। चीजों को आप इजी बनाओगे, देन ओनली लाइक पीपल फाइंड इट हेल्पफुल कि हाँ, हम कर सकते हैं। यस।
यस मैम। मैम, अभी बिजनेस हम कहे तो बिजनेस इतना आसान भी नहीं होता, काफी चैलेंजेस होते हैं, कई बार दिक्कतें ऐसी आती है कि आपको बिजनेस ही बंद करना पड़े। ऐसी ही एक दिक्कत हमारे सामने आई कोरोना पैंडेमिक के रूप में। तो हाउ डिड यू ओवरकम दिस चैलेंज? सो कोरोना वाज लाइक एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था. नोबडी एवर हैज सीन इन आवर जनरेशन अ पैंडेमिक और समथिंग. तो ये किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. सो इवन माय फैक्ट्री वाज नॉट ऑपरेटिंग, लाइक हर जगह लॉकडाउन था. It was difficult because I had to pay from my pocket, from my savings to all the workers and stuff. My payment was stuck. uh, बट ठीक है, देखो entrepreneurs का यही है, लाइक you need to have a risk taking capacity. You have to deal with failures and success. So it is a part and parcel of an entrepreneurial journey. तो आप अगर entrepreneur बनने का सोच रहे हो तो आप ये सोच लो कि मतलब ऐसे challenges आएंगे, तो आप इन सब चीजों के लिए रेडी रहो, प्लान बी रखो. पर ठीक है, आया गया. जैसे ही फिर फैक्ट्रीज खुलने लग गए, आई मीन रियल स्टेट अगेन लाइक स्टार्टेड लाइक इट काइंड ऑफ शूट अप. और फिर बहुत सारा डिमांड्स आने लग गया, एंड देन वी मेड लाइक गुड बिजनेस, वी डिड लाइक गुड बिजनेस. ग्रेट मैम। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे चैलेंजेस पे भी गिव अप कर देते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि डोंट गिव अप. लाइक आप क्यों गिव अप करना चाहते हो? लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं. अगर आप एक ईसीजी को भी देखोगे ना, उसमें भी जब तक अप्स एंड डाउन्स है तब तक आपकी लाइफ चल रही है, तब तक आप जिंदा हो. जैसे ही जिस दिन वो फ्लैट हो जाएगा ना, कहीं पे भी अप डाउन नहीं होगा, देन यू आर फिनिश्ड, यू आर डेड. तो आप ये सोचो कि ये सब चलते रहेगा लाइफ में, बट ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज थिंक एंड टॉक टू योरसेल्फ कि मैंने ये क्यों शुरू किया. अगर मैंने शुरू किया है, मेरे में इतना करेज था ये शुरू करने का, देन व्हाई नॉट टू टेक इट टू द फिनिश लाइन, एंड व्हाई नॉट टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. सो मेरा यही कहना है कि प्लीज डोंट गिव अप. लाइक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. या यस मैम, ट्रूली। मैम, एंड ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस चलाना काफी हेक्टिक हो सकता है, तो इट्स जॉब की तरह तो नहीं है कि 9 to 5 करे, क्योंकि इसके अंदर 24/7 इंसान को अवेलेबल होना पड़ता है। तो आपका मंत्रा क्या है वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करने के लिए? तो मेरा मंत्र है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फैमिली को भी उतना ही टाइम दूं, लेकिन अभी आई एम नॉट मैरिड, तो मुझे पता नहीं कि मैरिड लाइफ के बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा. बट अभी लाइक आई ट्राई टू स्पेंड द वीकेंड्स विथ माय फैमिली. कभी कभी वीकेंड को भी आई एम आल्सो वर्किंग, आई हैव मीटिंग्स एंड स्टफ, बट आई ट्राई टू गिव टाइम टू देम. आई ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर मी, क्योंकि मेरा एक सिंपल फंडा है लाइफ का कि अगर मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना, देन आई थिंक कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में. अगर मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, then that's where the problem area is. तो मुझे ये लगता है, पर मैं छुट्टियां लेती हूँ, मुझे घूमने का काफी शौक है. आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज, आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज. आई ट्रैवल विद इन इंडिया. तो मुझे ट्रैवलिंग काफी पसंद है, मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाती हूँ. सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू struck a balance between my work and my family life. ग्रेट। सो मैम, यंगस्टर्स के लिए तो ये मैसेज सारा था ही आपका, बट इसके साथ और आप और क्या एडिशनल मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, और खास करके वुमेन को, औरतों को, हु आर अबाउट टू स्टार्ट देयर बिजनेस या फिर सोच रहे हैं कि हम कुछ स्किल यूटिलाइज करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सके? तो विमेन को तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, दैट्स स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्ट एनीथिंग ऑफ योर ओन. That's the best thing that you can do to yourself and to your family. क्योंकि जब आप financially independent होते हो ना, it kinds of gives you so much of confidence. और बिजनेस में क्या होता है कि जब when you plunge into business, आप इतना सब कुछ देखोगे ना लाइफ में कि it will make you very strong as a person, which I think is very important in life as well. तो विमेन के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि स्टार्ट समथिंग दैट इज गोइंग टू बूस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ.
और youngsters को मैं ये बोलना चाहूंगी, we are living in an era of startups. The central government is doing a lot of things like Atmanirbhar Bharat, and they are investing so much into startup culture. तो अब I think एक new era of entrepreneurship has started, and this is the best time to start. और बिहार में तो start करोगे तो I think that is the golden time to start, because you're going to have like such less competition and you can thrive so much more. I mean, you have a high rate of success if you start in Bihar. So please start, because this time will never come back. And don't give up. Like, 3 things is very important: patience, persistency, and consistency. These 3 things are very important. So इस चीज पे आप give up मत करो और just start it. So मैम, पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है यंगस्टर्स के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और बिहार में ये अभी फिलहाल सबसे गोल्डन पीरियड है कि हर कोई यंगस्टर बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकता है। Right. सो ग्रेट मैम। हमारे साथ काफी लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से काफी लेडीज भी है, जो फिजिक्स कॉलेज की लड़कियां है, पटना वुमेन्स कॉलेज की भी लड़कियां है, तो आई होप उन्होंने भी काफी नोट्स लिए होंगे। सो मैम, I would like to thank you for being with us here today and sharing your really valuable insights. And I hope that every one of us is inspired to start their own business and not just keep it as an idea, but also implement it in reality. So thank you very much, ma'am. Thank you so much. Thank you all for being present here. Thank you. Yes. Thank you, ma'am. I would also like to thank all the participants in the meeting. I hope this was a very inspirational talk for you. So thank you very much.